بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس انتہائی خطرناک دہشت گردوں، ڈکیتوں، راہزنوں اور سماج دشمن عناصر کے قلع کما کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حکومت کے فراہم کردہ سیکرٹ فنڈز کی کوئی جواب طلبی نہیں، تاہم استعمال ہونے والے فنڈز کا تمام ریکارڈ ہر ہفتے پولیس ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیکرٹ فنڈز کے استعمال کے حوالے سے فورس اور عوام کے نام اہم پیغام میں کیا۔ میرا یہ پیغام پنجاب اور پاکستان کے عوام کے لیے ہے، گورنمنٹ کے تمام آفیشلز کے لیے ہے اور پولیس فورس کے لیے ہے، خاص طور پہ پنجاب پولیس۔ پنجاب پولیس دیگر پولیس فورس کی طرح انتہائی خطرناک لوگوں سے مقابلہ کرتی ہے، جس میں دہشت گرد، ایکسٹارشنسٹ اور بہت زیادہ رازدن، ڈکیت، خطرناک اور بدماش لوگ شامل ہیں۔ اس کے لیے حکومت ہمیں فنڈز دیتی ہے، جس کے لیے ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ہیں۔ اس میں سے ایک فنڈ ہوتا ہے سیکرٹ فنڈ، جس کی جواب طلبی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کی بھی جواب طلبی آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ سیکرٹ فنڈ میں نے سیکرٹ نہیں رکھا اور ہر ہفتے پولیس کے بورڈ کی میٹنگ میں اس کا خرچہ میں پیش کر دیتا ہوں اور رجسٹر کی فارم میں ایک ایک رسیٹ کے ساتھ اس کا جواب موجود ہے۔ لیکن میں عوام کے سامنے یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس ملزم یا مجرم کی گرفتاری کے لیے یہ خرچ کیا گیا یا کس ایگزیکٹ مقصد کے لیے خرچ کیا گیا، کیونکہ وہ سیکرٹ ہے۔ لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں خرچ کیا گیا۔ 3,82,47,500 روپیہ اس دن اکاؤنٹ میں تھا، چاہے وہ کیش کی فارم میں یا بینک اکاؤنٹ میں، جس دن میں نے چارج لیا، اور ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو انتہائی اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے گا، اور کچا آپریشن میں رحیم یار خان میں ہم نے فوری طور پہ 8 لاکھ روپے خرچ کیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کو ایک خاص پروجیکٹ کے لیے 5 لاکھ روپے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ولنریبل پاپولیشن کے انیشیٹوز کے لیے 5,18,620 روپے خرچ کیا۔ آپریشنز اور انویسٹیگیشن کے آفیشلز کو ہم نے 18,25,000 روپے دیا۔ سی آئی اے لاہور کو ہم نے 2 لاکھ روپے دے کے ایک انتہائی خطرناک گینگ کا خاتمہ کیا، اور اس کے علاوہ اب مزید 10 لاکھ روپے ہم نے کچا آپریشن میں خرچ کیا۔ لہذا 3,30,00,000 کے قریب یہ رقم میرے پاس موجود ہے، جو انشاءاللہ تعالی مجرموں اور خطرناک دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوگی، اور ان کا ہم قبر تک پیچھا کریں گے۔ یہ اماؤنٹ اس وقت موجود ہے اور اس کو ہر ہفتے پولیس بورڈ میں اور انشاءاللہ تعالی پبلک میں پیش کیا جائے گا۔ ہم اکاؤنٹیبل ہیں ہر 1 روپے کے لیے، اور یاد رکھیے گا یہ رقم ہم انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے استعمال کریں گے، اس ملک کو محفوظ بنانے کے لیے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ اپنے 6 ساتھیوں سمیت شہید ہونے والے پاک فوج کے میجر ندیم عباس بھٹی کا آج یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ دھرتی کے سپوت نے ایف سی رجمنٹ بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں وطن عزیز کے دفاع میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اہل خانہ کو میجر ندیم عباس بھٹی پر فخر ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حافظ آباد سے بیورو چیف شفقت علی پہلوان سے۔ جی شفقت، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، حافظ آباد کے نواحی علاقہ برج دارہ کے سپود میجر ندیم عباس بھٹی، جو کہ 3 سال قبل بلوچستان میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما گیا ہے، اور اس حوالے سے میرے ساتھ ان کی فیملی موجود ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، آپ میجر ندیم بھٹی کی شہادت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، میجر ندیم بھٹی کی شہادت میرے لیے اور میرے پورے خاندان کے لیے ایک ناز اور فخر کی بات ہے کہ میرے بھائی نے اس ملک پاکستان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس ملک کی عوام کی حفاظت کے لیے 24 آور وہ اس حاضر رہا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اور میرا پورا خاندان اس ملک پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، اور اپنے ملک دشمنوں کو یہاں سے صفایا کر کے انشاءاللہ رہیں گے۔ آج یہ تھے میجر ندیم بھٹی کے بھائی، اور اب میرے ساتھ ان کے بیٹے بھی موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں وہ اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا جذبہ رکھتے ہیں۔ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ جیسے آرمی آفیسر بنوں گا، میں بھی اپنی شہادت ڈالوں گا، اور میں بھی اپنے بابا کی طرح آرمی آفیسر بنوں گا۔ آج ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ یہ بھی اپنے والد کی طرح آرمی آفیسر بنیں گے اور ملک کی حفاظت کریں گے۔ ان کی فیملی کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے، اور یہ اپنے ملک پاکستان کی خاطر نذرانہ جان کا اپنا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی
लेस्को बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक। तहसील चूनिया में 200 से जायद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मुलजिमान को 16 लाख रुपए से जायद जुर्माना और 80,000 यूनिट्स डाल दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। असलम बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लेस्को बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक तहसील चूनिया में 200 से जायद बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मुलजिमान ने वापटा की मेन सप्लाई से डायरेक्ट कुंडे लगाकर घरों और हवेलियों में बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। STO सगीर बशीर, STO इफ्तिहार, DSO इंचार्ज मोहम्मद अरशद मुगल ने मीडिया को आगाह किया कि बिजली चोरों को 16 लाख से जायद जुर्माना और 80,000 यूनिट्स भी डाल दिए गए हैं और मुलजिमान के खिलाफ 143 मुकदमात का इंतराज भी करवाया गया। लेस्को अफसरान का कहना है कि मुहज़्ज़िब कौमें बिजली चोरों को माशरे का नासूर समझती हैं। बिजली चोर कितने ही बाअसर क्यों ना हो, कानून से बालातर हैं। हासिलपुर कचहरी में पेशी पर आए मुलजिम का वकील पर हमला। जवाबी वार करते हुए वकला ने खूब दुर्गत बना डाली और पुलिस के हवाले कर दिया। फैयाज खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। एडिशनल सेशन जज हासिलपुर की अदालत के बाहर पेशी पर आए हुए मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा वकील पर हमला कर दिया, जिस पर अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। इस मौका पर मौजूद लोगों और वकला ने एक हमलावर को पकड़ लिया और हुब दुनाई की। बार एसोसिएशन हासिलपुर के सदर लतीफ नवाज ने मुतासरा वकील अदनान मकसूद, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार और दीगर वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदनान मकसूद एडवोकेट ने मोहम्मद नदीम गुल के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। नदीम गुल, उमर अरसलान गुराया, नसीर बोबक मुसल्ला पिस्टल अदनान मकसूद पर हमलावर हुए और दौरान हमला अदनान मकसूद का पर्स गिर गया, जिसमें 22,000 रुपए और कार्ड वगैरह था जो मुलजिमान ने उठा लिए। इस मौका पर DSP हासिलपुर जाम सलीम अख्तर वकला को यकीन दहाई करवाई गई कि वो मेरिट पर इस मामले की तफ्तीश करेंगे, जबकि थाना कायमपुर पुलिस ने मुलजिम नदीम गुल को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तरनोल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट के ज़ेर एहतमाम कांगो वायरस से बचाव के बारे में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने की। मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट के ज़ेर एहतमाम कांगो वायरस से बचाव के बारे में आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने की। वाक में CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर यूजेन सुहेल, DHO हेल्थ डॉक्टर शहजाद खलील, डिप्टी DO हेल्थ डॉक्टर नाइमा अशरफ समेत दीगर हेल्थ अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका वाक ने कांगो वायरस से एहतियात के बारे में आगाही पम्फलेट फ्लेक्स उठा रखे थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कांगो वायरस खतरनाक वायरस है और इससे एहतियाती तदाबीर अपनाने से ही बचा जा सकता है। ये वायरस मवेशियों पर पलने वाले चिचड़ों से फैलता है। शदीद बुखार, मुंह नाक से खून बहना, शदीद जिस्म में दर्द इसकी अलामत है। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना है कि आवामुल नास जानवरों की खरीदारी पर चिचड़ों की मौजूदगी न होने की तसल्ली कर लें। आखिर में उनका कहना था कि DHQ, THQ अस्पतालों में इस हवाले से बेड मुख्तस कर दिए गए हैं। मिंचनाबाद के इलाके ढाक पतन चेक पोस्ट में तैनात असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस उमर सदी ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। दौरान चेकिंग पैसों से भरा हुआ बैग भूल जाने वाले असल मालिक के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं तैयब महमूद से। जी तैयब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढाक पतन पुलिस चौकी पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए लगाया गया है। तो आज ट्रैफिक पुलिस के नौजवानों ने एक कारनामा सार अंजाम दिया कि चेकिंग के दौरान कुछ लोग जो है वो अपना पैसों से भरा हुआ बैग भूल के चले गए थे। तो उन्होंने मालिक को ढूंढा और ढूंढने के बाद उनको पैसे लुटाए। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस जनाब उमर सदी साहब मौजूद है। तो आइए उनसे जानते हैं ये सारी स्टोरी कैसे, उन्होंने ये कैसे मालिक को तलाश किया। जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर, वो कैसे वो अपना बैग पैसों से भरा हुआ भूल गए थे और आपने उनको कैसे ट्रेस किया? जी, मेरी इधर ना हमारी चेक पोस्ट है ढाक पतन, इधर मेरी ड्यूटी है। तो एक बाइक वाला था, उसको हमने चेकिंग के लिए रोका है, उसका ID कार्ड लिया है, उसको स्कैन किया है। तो उनके पास से कुछ अपने बैग वगैरह थे, उन्होंने मोबाइल हमारी चेक पर रख दिए और जब उनकी हमने चेकिंग वगैरह कर ली तो उनको हमने उनका ID कार्ड वगैरह दिया और वो वापस चले गए। तो उनको अपना बैग इधर भूल गए थे, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि हमारा बैग कहाँ रह गया।
तो थोड़ी देर बाद हमें पता चला, करीब आधे घंटे बाद हमने चेक किया तो उनका बैग पड़ा था जो नोटों से भरा हुआ था, तो उनका हमारे पास कोई नंबर वगैरह भी नहीं था। तो जो मेरे पास उनका जो मैंने आई कार्ड स्कैन किया था ना, वो मेरे पास था। फिर मैंने आई कार्ड से ना उनका मोबाइल नंबर ट्रेस किया, मोबाइल नंबर उनकी किसी लेडीज़ का था। मैंने उससे रब्ता किया तो उनसे पूछा कि ये जो आई कार्ड नंबर है ये किसका है, उसने बताया ये मेरे मियाँ का है। मैंने कहा उसका कोई सेल नंबर, फिर उसने मुझे एक सेल नंबर दिया जिससे मैंने रब्ता किया, तो उसने बताया कि मैं पाकपतन का रेशन रजिस्टर में पाकपतन पहुँच चुका हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारा एक बैग था, तो उस बैग में हमारे कुछ पैसे थे, वो हमें पता नहीं लगा रास्ते में गिर गया है या कहीं कहीं गुम हो गया, नहीं पता। फिर मैंने उससे थोड़ी सी और इंटरोगेशन की ताकि पता चले कि वाकई बैग उनका है। फिर इसलिए मैंने उनका वो बैग उनको लेने के लिए कहा कि आप आ जाएँ पाकपतन चेक पोस्ट पे आ जाएँ, उससे आके अपना बैग ले लें। वो वापस आए तो उनको जो अमाउंट थी नोटों से भरा हुआ बैग था, उन्होंने मुझे बताया कितनी अमाउंट है हमारी। मैंने कहा आप चेक कर लें, उन्होंने चेक किया, अमाउंट उनकी पूरी थी, तो वो उनको जितनी भी अमाउंट थी सारा उनको बैग उनको वापस कर दिया। जी, ये थे असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस जनाब उमर सदी साहब, जिन्होंने पैसों से भरा हुआ बैग जो है मालिक को लुटाया और उन्होंने ईमानदारी कायम करके अपने जो है ट्रैफिक पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तैयब महमूद बेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचरा। और जदीद मेडिकल साइंस में गंजेपन का इलाज कैसे मुमकिन है? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल की मेजबान डॉक्टर फातिमा फारूक से बातचीत के दौरान डॉक्टर तूबा उस्मान ने क्या माहिराना राय दी, आइए देखते हैं। जिस तरह लोगों के आजकल आप देखते हैं कि रिसीडिंग हेयर लाइंस हैं, बाल स्पेशली मर्दों में बाल कम होने का मसला है और ये मौसमी असरात भी हैं, तो इसके लिए भी कोई प्रोसीजर्स हैं जिससे बाल जो है वो या तो गिरे नहीं, अगर गिर रहे हैं तो जल्दी वापस भी आ जाए? जी बिल्कुल, हेयर के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम असेस करते हैं कि किस तरह का पेशेंट को बैडनेस हो रही है, एलोपेशिया है या क्या है, हेयर फॉल किस तरह का है, उसके असेसमेंट के बाद हम प्लान करते हैं कि अब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ओरल मेडिकेशन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और अगर उससे उसको फर्क नहीं पड़े फिर हम पीआरपी की तरफ आते हैं। सही। और इसमें भी हमारे पास डिफरेंट तरह के पीआरपीज होते हैं, मतलब आपने पीआरपी करनी है, हमने उनका पेशेंट का ब्लड लेना है और प्लाज्मा के थ्रू हम ये करते हैं प्रोसेस। और एक हमारे पास जो अब लेटेस्ट आया वो हम लोग मीजोथेरेपी करते हैं। सही। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो उसके थ्रू हम दोबारा से रीग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। सही। और अभी जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं उसमें हम स्टेम सेल थेरेपी भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट पर और उसके बजट पे भी डिपेंड करता है। डेफिनेटली बजट पर डिपेंड करता है क्योंकि चीजें काफी कॉस्ट इफेक्टिव। सही। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में की फैसिलिटीज मौजूद हैं? गवर्नमेंट जी हमारे जिन्ना हॉस्पिटल में है डेफिनेटली। सही। तो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह की भी फैसिलिटीज होती हैं? नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज नहीं होती। सही। तो जो आपने प्रोसीजर सारे बताए, हेयर ट्रांसप्लांट इससे एक मुख्तलिफ चीज़ है, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो किन सूरतों में जाते हैं लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ? यार हेयर ट्रांसप्लांट में तो मोस्टली उन लोगों में जाते हैं जिनका बिल्कुल ही मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है उसमें मोस्टली, लेकिन मेल ही इस चीज पे जाते हैं, फीमेल को तो हम बिल्कुल भी नहीं इस चीज पे। तो अब फीमेल में भी इस तरह से डिजीज हो सकती है कि मेल्स की तरह उनमें भी एकदम से बाल के पैच गिर जाए? बिल्कुल होता है। एलोपेशिया जो है वो फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में वैसे तो ट्रांसप्लांट फीमेल भी करवा ही सकती हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करवाती। सही। तो आप जो आजकल हमारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं सैलून्स में कि हेयर एक्सटेंस हो रहा है, केराटिन ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और हर जगह हो रहे हैं, गली मोहल्लों में भी हो रहे हैं, अच्छे सैलून्स में भी हो रहे हैं, तो क्या ये हेयर हेल्थ के लिए सही है, मुनासिब सी चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हेयर हेल्थ के लिए नहीं अच्छी, क्योंकि आपको पता है इसमें हीट और सारा ये स्ट्रेटनिंग और ये सारा होता है, तो ये हेयर्स के लिए इतने अच्छे नहीं है, डैमेजिंग है, तो ये नहीं करवाने चाहिए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी। रमजान हमें कैसे बाशऊर बनाता है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब क़ब्लकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह।
जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका मतलब है